है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो ना हम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्ज है गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है हम हो पुजारी तत्व के गुरुदेव के आदेश के सच प्रेम के नेम के सधर्म के सत्कर्म के हो चीर झूठी राह की अन्याय की अभिमान की सेवा करन को दास की परवाह नहीं हो जान की छोटे न हो हम बुद्धि से हो विश्वमय से ईश्वरमय हो राममय और कृष्णमय जगदेव में जगदीशमय हर इंद्रियों पर ताब कर हम वीर हो अति धीर हो उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रत खंबीर हो अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भरने गम रहे गर मौत भी आ गई सुख हेलो हाँ तो टॉपिक तो तुम सबको पता ही होगा बताओ क्या है तो बेसिकली जो स्पीकर होता है ना तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज्ञान का भंडार है वो तुम्हारी तरह पढ़ के आए तो अभी कोर्स में सिलेबस में तो आरसीएम होता होगा तो अभी पढ़ कौन रहा है उसमें डायरेक्ट टेक्स्ट क्लास चली होगी सब तो एक बैच है जिसकी तो शायद अभी जाने वाले छुट्टियों में तो अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम एज ए लिसनर नहीं मतलब एज ए स्पीकर भी कुछ बोलना चाहो तो बीच में बता सकते हो बोल सकते हो समझा सकते हो तुमको लगता है मैंने ये चीज अच्छे से समझी हुई है मैं भी इसको बता सकता हूँ बीच में कोई बोलना चाहे तो इंटरेक्टिव करना टाइम पास मत करना किसी के पास कोई एक्स्ट्रा ज्ञान हो क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि पता सबको है लेकिन डीप में कोई नहीं गया हो तो कोई गया हो डीप में तो थोड़ा थोड़ा बताते रहना बाकी रिवर्स चार्ज बेसिकली क्या होता है वो अगर मैं समझाने लगूंगा तो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे बेसिक तो इतना ही है 10-15 लाइन है जिन पे आरसीएम लगता है पहले दो सेक्शन में शायद 9495 9394 उनमें से एक तो मोस्टली आज के डेट में इफेक्टिव है ही नहीं उसका तो यूज बहुत लिमिटेड यूज है इनिशियली वो बहुत बड़ा यूज था तो इसलिए डायरेक्ट पहले किसका
टॉपिक वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको दूर दूर चलो आप आ जाइए। Good afternoon, everyone. So today I am Manish Chaudhary along with my co-presenter ICTS Darsh Cambodia going to present on RCM, reverse charge mechanism. So before understanding reverse charge mechanism, I think we should know about what is forward charge mechanism. So under forward charge mechanism, when recipient pay consideration to the supplier, then a supplier is liable to pay that GST component to the government directly, right? But under RCM, when recipient paid that consideration, so it excludes the GST component because here the liability shift from supplier to the recipient. Now recipient is liable to pay that GST component to the government directly. So see what definition says. हैंग हो गया है। प्रेजेंटेशन मोड में नेक्स्ट दबाएगा तो चलता है। हाँ चल नहीं रहा। हुआ So see, under reverse charge mechanism, the liability to deposit tax shift from the supplier to the recipient. The chargeability get reversed and all the provision of the GST Act applies to such as recipient if he is the person responsible for paying the tax in relation to the supply of goods or services. Now, before going deep into this topic, firstly we will understand some basic terms which help us to understand this whole concept. So, next. Now, the first one is recipient. Now, who is recipient? So, there are two cases. First is where consideration is payable. So, where the consideration is payable, the person who is liable to pay that consideration to the supplier will be the recipient. Now, see, we will take the example under bill to ship to model. If person A pay consideration to person B, B is the supplier who supplies goods or services or both to person A. Now, A instruct B to deliver that particular goods to person C. Now, goods are in possession with person C, but A is liable to pay that consideration. So it doesn't matter who is receiving those goods or who is receiving those services. The person is liable to pay that consideration will be the recipient. The next is where the consideration is not payable. So पहले तो GST में से कौन से cases होते हैं जब consideration pay नहीं करते तो भी वो supply होता है? Any idea? Scheduled payment charges in Schedule payment charges. Any idea? permanent disposal of assets where ITC has been availed. Second would be transactions with related person or distinct person. Right. Third would be transactions with agents does transactions on behalf of principal but on his own name. His voice will be issued in his own name. Yeah. Fourth would be importation of services between related persons in the course of a transaction. Right. ऐसा एक एग्जांपल बताओ जहाँ RCM लगेगा ऐसे केस। Importation of services. जहाँ कंसिडरेशन नहीं है तो मीटिंग सप्लाई होगा Related persons. Importation of service कर रहे हैं हम पे नहीं कर रहे बट उसका रिवर्स चार्ज का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है। So where services by direct so where no consideration is payable for the supply of goods or services, the person to whom the goods are delivered or services given will be the recipient. Now agent also include here. जैसे कि इसने बताया कि अगर एजेंट आपके बिहाफ पे कोई भी गुड्स ले रहा है जैसे या गुड्स सेल कर रहा है और इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा है then agent will also be the recipient. Next.
Now the second term is consideration. Now what is consideration? Consideration includes all the payments made or to be made, whether in money or otherwise. But it excludes any subsidy given by the state government or the central government. मतलब अगर कोई सब्सिडी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे रहा है, कोई प्राइवेट पर्सन दे रहा है, then it will be included in the consideration. But if it is given by the government, then it will be excluded. And it also excludes the deposits. For example, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया, तो आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करोगे JVBNL को, ठीक है? तो that deposit will not be part of the consideration because that is refundable when you withdraw your connection, right? But और सेम ऐसा केस होता है जब आप कोई फ्लैट रेंट पे ले रहे हो, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है. बट अगर आपने डिफॉल्ट किया रेंट पे करने में, then the supplier can adjust that deposit with the rent. तो उस केस में वो consideration बन जाएगा, right? अब इधर कंडीशन है कि कंसीडरेशन रेसिपिएंट भी पे कर सकता है, कोई और भी पे कर सकता है. सो कंसीडरेशन इंक्लूड ऑल दोस पेमेंट वेदर पेड बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन. नाउ व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग रेसिपिएंट, आई सेड द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसीडरेशन विल बी द रेसिपिएंट. नाउ आई एम सेइंग द कंसीडरेशन कैन बी पेड बाय एनी अदर पर्सन अदर देन द रेसिपिएंट. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. तो इसको समझते हैं. पर्सन अगर कोई ए है, उसका कोई डेटर है पर्सन बी, उसने बोला कि तू डायरेक्टली पर्सन बी को 1000 रुपीस ए को दे दे, तो उसका डेटर था. उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि तू डायरेक्ट सी को दे तो 1000 रुपीस, और सी है ए का सप्लायर, राइट? और कोई भी गुड है मान लो 3000 का, तो 2000 ए डायरेक्टली पे करेगा और उसने 1000 रुपीस उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, उसका डेटर था. बट इधर लायबिलिटी 3000 की किसकी थी? ए की थी. तो ए विल बी द रेसिपिएंट, नॉट बी विल बी द रेसिपिएंट. बट कंसीडरेशन इंक्लूड बोथ 1000 and 2000 equals to 3000, right? And the next is GST treatment under consideration. So under forward charge mechanism, consideration includes the GST amount because it is the liability of the supplier to pay to the government. तो जो recipient consideration pay करेगा supplier को, तो GST का component भी include करेगा because it is paid by the supplier. But under RCM, GST will be paid by the recipient, so consideration में GST का amount नहीं होगा. अगर जो goods 100 rupees का and rate will be 18%, तो forward charge में तो 118 देगा consideration, but RCM में 100. Next. So there are some procedural aspects. Registration, time of supply, one by one we will read about this. Next. The first one is recipient. Registration under RCM for the recipient. So recipient under RCM is compulsorily required to get registered under GST, whether its threshold limit apply or not. मतलब कि ये threshold limit क्या होती है? 10 lakh, 20 lakh और 40 lakh. 40 lakh goods में, 20 lakh services में, और अगर आपकी कोई भी पूरी स्टेट्स में एस्टैब्लिशमेंट है, then you have the threshold limit will be 10 lakhs, right? But RCM के केस में आपकी threshold limit काउंट नहीं करेगी. रेसिपिएंट के केस में you are compulsorily required to get registered under GST, और 30 days में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. बट इधर कुछ एग्जम्पशन है. जब हम सर्विस वाला पार्ट लेंगे तो उसके साथ साथ बताएंगे. जैसे कि जीटीए के अंदर when GTA supplies services to the unregistered person, then it is an exempt supply under mega exemption list. तो जब उसमें GST ही नहीं लग रहा है, तो रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? तो वो एक एग्जम्पशन हो गया इस चीज का, और ऐसे और भी एग्जम्पशन है जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे. नाउ अंडर RCM exemption has been given to the supplier. So the person who are only engaged in making supplies of goods which are taxable only under the RCM and paid by the recipient. और कोई भी ऐसा पर्सन जो सारी वही सप्लाईज कर रहा है जिसमें रेसिपिएंट RCM में टैक्स पे होगा, तो उसको एग्जम्पशन दी गई है. वो सप्लायर रजिस्ट्रेशन ना ले तो भी चलेगा. Right. Next. Now time of supply for RCM under RCM. So first is for the goods. So there will be 3 dates. First will be the date of receipt of goods. जिस दिन goods अपन को receive हो. The second will be the date of payment. Now what will be the date of payment? The date on which the entry has been made in the books of account of recipient, or the date when your account has been debited. Whichever is earlier will be the date of payment. And the third one is 31st day from the date of invoice. जो भी 3 dates होगी, whichever is earlier will be the time of supply. Now, if the time of supply will not be determined by these 3 dates, then default rule will apply, and that is that the date on which the entry has been made in the books of account of the recipient will be the time of supply. और वैसा कोई comparison नहीं करना है, क्योंकि अगर possible नहीं है तो इनमें से कोई भी date निकालना possible नहीं है. Next. Now, time of supply for services under RCM. So भाई कोई 3 dates देखेंगे अपन. Date of payment वैसे कैलकुलेट होगी जैसे गुड्स की केस में. इधर आपको 61st डे देखना है from the date of invoice.
और अगर जैसे अभी मैं बताऊंगा कि सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस भी इशू होता है अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। तो अगर सेल्फ जनरेटेड इशू हो रहा है तो 60 डेज तो देखेंगे नहीं, अपन देखेंगे जो रिसिपिएंट ने जिस दिन सेल्फ जनरेटेड इशू इनवॉइस इशू किया है वो डेट देंगे। तो whichever is earlier से होगी that will be the time of supply. इधर भी डिफॉल्ट रूल अप्लाई होगा, if it is not determined by the above 3 days then the date of entry in the recipient books will be the time of supply. अब इधर एक एसोसिएट एंटरप्राइज का केस है। सपोज रिलायंस एक कंपनी इंडिया के अंदर है, इट्स एसोसिएट कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया and he is receiving some services from that associate enterprises. Now what will be the date of time of supply? So time of supply will be the date of entry in the books of account or the date of payment whichever is earlier. इसमें हमको 61st day वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, right? Next. So here some illustration, first for the supply of goods and second for the supply of services. So read and try to answer. सेवनटीन राइट, क्योंकि 15 अक्टूबर से अपन 31st डे काउंट करेंगे तो 17 और 18 से आगे जाएगा। पेमेंट की डेट 17 एंड 18 whichever is earlier is 17. So the answer of first question is 17 October 2024. Now the second one 16. इसको ध्यान से देखिए। Anyone? Any answer? कंफ्यूजन हो रहा है? एक्चुअली आप क्वेश्चन करोगे जिन्होंने भी आईडीटी नहीं की होगी जब वो करेगा तो उसको भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एक अपन जब उसमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फिर उसमें नोट दिया हुआ होता है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होती है, द लास्ट डेट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस और द एक्चुअल डेट व्हिचएवर इज एवलेबल। ये होता है फॉरवर्ड चार्ज में, बट ये आरसी में नहीं लगता। आरसी में एक्चुअल डेट ही लेते हैं, जैसे आपने बात की या पहले क्या, तो जो फर्स्ट वाली डेट है वो इग्नोर करनी थी और सेकंड डेट से अपन को काउंट करना था 60 राइट। 60 फर्स्ट डे अपन इससे 15 से काउंट करेंगे, तो ये कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो कंटेंट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कि आपको नेम लेना है, एड्रेस लेना, जीएसटी आईडी, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, मैक्सिमम कैरेक्टर विच इज 16, डेट ऑफ इनवॉइस, एचएसएन कोड, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का अमाउंट वगैरह वगैरह। Now, for the goods, triplicate copies will be issued. First, original will be with the recipient, and duplicate copy will be with the transporter, and the triplicate copy will be with the supplier. In case of services, duplicate copy will be with the supplier, and the original one will be with the recipient. But अगर आप e-invoicing के provision apply होते हैं, then आपको multiple copies issue करने की need है. Next. Now, under RCM, if the supplier is registered, then he is required to issue tax invoice. So he should mention on the tax invoice that the tax is payable on the reverse charge. क्योंकि उस tax invoice में GST का अमाउंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा अपने tax invoice पे if the supplier is registered. But if the supplier is not registered, then he is not required to issue any documents under RCM, right? But if the supplier is unregistered, और अपन आगे कंडीशन पढ़ेंगे कि ITC अवेल करने के लिए you should have some documentary evidence, tax invoice और documentary evidence. तो documentary evidence में self generated invoice है, क्योंकि अपने पास tax invoice तो होगा नहीं, तो अगर supplier unregistered है तो recipient को self generated invoice issue करना पड़ेगा, right? अब इधर एक चीज है supplier who is not registered, तो इसमें कौन से supplier इंक्लूड होते हैं? एक तो supplier जो समझ में आ रहा है कि रजिस्टर्ड नहीं है, पर इसमें वो supplier भी रजिस्टर्ड, वो supplier भी इंक्लूड होंगे जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 51। अब सेक्शन 51 क्या होता है? टीडीएस, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉर्मली उसमें रजिस्टर्ड होता है टीडीएस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 51 के अंदर, तो भी अपन उसको अनरजिस्टर्ड ही कंसीडर करेंगे सेल्फ जनरेटेड टैक्स इनवॉइस इशू। और जब आरसीएम के अंदर रेसिपिएंट पेमेंट करेगा तो एक पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा। अभी नेक्स्ट देयर इज समरी, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने सप्लाई करी,
फिर इसने सेल्फ जनरेट इनवॉइस इशू किया, रेसिपिएंट ने खुद के नाम पे खुद ही, फिर पेमेंट वाउचर इशू करेगा, जब वो पेमेंट करेगा सप्लायर को, then he pay the GST and then can claim the ITC. Next. Now under RCM recipient की 6 लेजर मेंटेन करेगा, इनपुट CGST, SGST, IGST, RCM and output IGST, CGST, SGST, RCM. Now when expense booked, तो क्या एंट्री होगी? Expense account debit to creditor, right? For recording GST, we will debit input GST, input SGST to output SGST. और जब पेमेंट होगा तो वही आउटपुट को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देगा। अब अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता तो इस एंट्री में क्या चेंज आता? आउटपुट लायबिलिटी इनपुट से आपको क्रेडिट करना पड़ता है, बेसिकली आउटपुट लायबिलिटी। हाँ, बेसिकली आउटपुट के जो लेजर है वो हिट नहीं होते, खुद से क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल अपन को क्रेडिटर को पे करना है, ठीक है, और इनपुट तो रहता, राइट। नेक्स्ट, और जो अपन पेमेंट कर रहे थे वो भी फिर पहले आईटीसी से करते हैं, जो अपन कैश में लगाएंगे। वही नेक्स्ट टॉपिक है कि पेमेंट आरसीएम का कैसे होगा। तो अपन को क्रेडिट लेजर्स को तो छेड़ना ही नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल आउटपुट लायबिलिटी थी वो अपन पहले आईटीसी से करते हैं, फिर कैश में पे करना है। बट फॉर द आरसीएम वी यूज कैश लेजर, राइट, and the payment of the tax on reverse charge should be paid on or before 20th of the following month. Now there are some basic conditions for availing ITC which are somehow similar to the forward charge mechanism. So the first one is the goods on which ITC has been claimed should be used for the purpose of business, right? Second is documentation requirement, like tax invoice होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, जैसे कि सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस, आईएसडी का केस है तो जो आईएसडी इशू करेगा इनवॉइस कर दिया, कस्टमर तो बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, receipt of goods or services received हो जानी चाहिए। आईटीसी अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब जब अपनी जीएसटी टू बी के अंदर शो होता है तो रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो अनरेस्ट्रिक्टेड में शो होना चाहिए। टैक्स पे टू द गवर्नमेंट, टैक्स ऑलरेडी पे हो जाना चाहिए, एंड रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए जीएसटी फ्री। If goods received in lots, then ITC will be claimed when the last lot has been received or last installment has been received. अब इधर एक पॉइंट है, अपन ने पढ़ा है 180 डेज के अंदर हमको पेमेंट करना होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सप्लायर को, बट इस केस में इसमें एग्जम्पशन है, 180 डेज वाली कंडीशन आरसीएम में नहीं लगती है, क्योंकि लॉजिकल है। गवर्नमेंट बोलती है आपने हमें 18 रुपीस का, सपोज 18 की डेट 18 रुपीस का दिया तो हम आपको उसका आईटीसी देगा, मतलब नहीं हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट उस केस में था कि सप्लायर पेमेंट करता है जीएसटी, तो 180 डेज वाली कंडीशन आरसीएम में नहीं है। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, भाई अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी if he paid after 30th November or the date of annual return, whichever is earlier. Depreciation restriction, if you purchase any machinery, suppose cost क्या 1 lakh, right, 80% की rate है 18,000 का GST हो गया, but if you are claiming depreciation on 1,18,000 तो आपका ITC 18,000 का नहीं मिलेगा, ये है restriction. Now ISD, input service distributor. So ISD क्या होता है? Input service distributor means an office of supplier of goods or services or both which receive the tax invoice and is liable to distribute that tax invoice to their distinct person. Suppose कालानी कंपनी के पास पहले ONGC का ऑडिट हुआ, so suppose 10 प्लांट के अपन ने ऑडिट करे, ठीक है, तो अपन जो इनवॉइस इशू करेंगे वो तो हेडक्वार्टर, सपोज हेडक्वार्टर के नाम पे इशू, अब वो पूरा उसका तो आईटीसी का हेडक्वार्टर तो ये नहीं कर सकता, so he has to distribute between all those 10 plants, तो वो रजिस्ट्रेशन रहेगा फिर आईटीसी के अंदर, और वो एक इनवॉइस इशू करेगा 10 प्लांट्स को, so that they can claim ITC proportionately, right? Next. Now get notified under RCM. ISD के केस में एक इनवॉइस का इशू हो सकता है, लेकिन इस क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म ISD के अंदर देखिए, ISD RCM वाली सर्विसेज का RCM पे नहीं कर सकता, इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ ISD रजिस्ट्रेशन। पहले थी अभी हटी है लेटेस्ट, अब ISD के अंदर आ गई कि क्योंकि RCM का केस है तो भी वो इनवॉइस इशू कर सकता है रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट पर्सन। आरसीएम वाले केस में पहले नहीं था, हाँ पहले नहीं था, राइट, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, हाँ बट अब हो गया, तो आरसीएम से भी कर सकते हो, तो अलग इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है। पहले आरसीएम के केस के अंदर ये इनवॉइस इशू नहीं करता था, बट अब ये कर सकता है आईएसडी नए फाइनेंशियल केस। हाँ, so there are some goods
जिसकी सप्लाई में अपन को आरसी में पेमेंट करना है. तो फर्स्ट एंट्री इज फॉर द सप्लाई ऑफ कैशू नट्स, बीटी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स. तो इसमें सप्लायर कौन होगा? एग्रीकल्चरिस्ट होगा एंड द रेसिपिएंट विल बी एनी रजिस्टर्ड पर्सन. नाउ the agriculturist की definition है, an individual or the HUF undertaken the cultivation of land by his own labor, by family labor or any paid labor, right? अब family में कौन include होगा? His spouse or children, or mainly or wholly dependent parents, grandparents and brother and sister. Right. Next. Now the second is supply of lottery. So 30th 29 सितंबर 2023 से पहले क्या था कि जो लॉटरी थी वो गुड्स में नहीं आती थी, ठीक है? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है जीएसटी के अंदर? गुड्स मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स द एक्शनेबल क्लेम. तो 29 सितंबर 2023 से पहले ऐसे था एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. बट उसके बाद एक सर्कुलर आया, उसने इंक्लूड किया, इट इंक्लूड्स लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. तो उसके बाद से इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स. Now here the supplier is state government, union territory or local authority and the recipient is lottery agent or any selling agent, right? Next. So there are two types of lottery. Lottery done by the state government or lottery authorized by the state government. So when government supplies the lottery to any lottery distributor, so RC will be applicable. The particular lottery distributor will pay GST under RCA, right? But if that lottery distributor further supplied a lottery ticket to any other person, now it will apply a forward charge mechanism, reverse charge mechanism, or what? It will be exempt. It will be exempt supply. अगर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर ने आरसी में पे कर दिया है और फिर उसको फर्दर सप्लाई करता है तो वो सप्लाई exempt होगी, कोई टैक्स पे नहीं, right? Now the next is lottery authorized by the state government. अब here government is not the supplier of lottery ticket. इधर से उसने authorize करा कि ये लॉटरी authorized है, right? The first supplier can be any lottery distributor. अब उसने किसी लोकल एजेंट को लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट लॉटरी दी, राइट? तो उसके लिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और अगर वो उसको फर्दर सप्लाई करता है तो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ये इधर इसलिए एक है कंफ्यूजन है, एक ऑथराइज्ड है और एक में गवर्नमेंट खुद सप्लाई है, राइट? नेक्स्ट. Now supply of used vehicle, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap. So here the supplier is central government, state government, union territory or local authority, excluding Ministry of Railway. पहले मिनिस्टर ऑफ रेलवे इंक्लूड था बट बाद में वो आईटीसी अवेल कर सके इसलिए उनको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहने दिया और उसको इधर से एक्सक्लूड कर दिया एंड द रेसिपिएंट विल बी एनी रजिस्टर्ड पर्सन. बट अगर इन डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये गुड सप्लाई करना है देन ही मस्ट टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, देन ओनली ही कैन सप्लाई दीस गुड्स टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट? Next. Supply of priority sector lending certificate. बता पाएगा priority sector lending certificates होते क्या हैं? Anyone? हाँ. अगर आप एरिया में ज़्यादा लैंडिंग करते हो तो आप एक सर्टिफिकेट जो स्टेट लेवल पे देना ताकि जिससे उस एरिया में जो है वो वन जे सर्विस डॉक्यूमेंट. बिल्कुल राइट. तो इसमें क्या होता है, सपोज एसबीआई और एक्सिस बैंक है, आरबीआई ने पॉलिसी दी कि आपको अपना जो भी वो साल में जितने भी टोटल लोन्स होते हैं, सपोज ये दोनों 100 करोड़ से लोन देते हैं. अब इसमें लायबिलिटी की उसको 18 करोड़ किसी पीएसएल मतलब प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग देनी है. सपोज एग्रीकल्चर में देनी, फार्मर्स को देनी है 18 करोड़, बट उसने 20 करोड़ दे दी पूरे साल में. और इधर एक्सिस बैंक को 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, इसने 18 करोड़ की दी. अब ईयर एंड में इनको कंप्लाई तो करना पड़ेगा आरबीआई के साथ. तो क्या करेगा वो, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा इसके नाम पे कि गवर्नमेंट को बोलते हैं जो भी इनका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी है तो वो 2 करोड़ होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे. इट डजंट मीन कि कस्टमर शिफ्ट हो गए, वो लोन रीपेड उसी को होगा बट उसने एक सर्टिफिकेट साइन करके दे दिया, उसके अगेंस्ट में कंसीडरेशन पे करेगा. तो दैट ऑन दैट कंसीडरेशन आरसीए विल बी एप्लीकेबल एंड एक्सिस बैंक विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. सो ऑफ कोर्स ये बात है ना, ये बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो सप्लायर रेसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन. Next. Supply of metal scrap. So, if unregistered supplier makes supply to the registered person, so RCM will be applicable. But if the unregistered supplier supply to the unregistered buyer, then supply will be exempt.
राइट, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ केसेस होंगे जहां आरसीएम के अंदर भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. दिस इज वन ऑफ दोस केसेस. If the supplier is registered under forward charge, if the supplier is registered, then forward charge will be applicable. RC नहीं होगा. अब इसमें 9 अक्टूबर 2024 के अंदर ये रेलेवेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंट सर्कुलर है, ठीक है. 9 अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन आया. इससे पहले क्या होता था, जो टीडीएस है वो नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काटते थे, राइट. जो 51 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं गवर्नमेंट लेते हैं. ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि मेटल की केस में प्राइवेट भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, टीडीएस डिडक्ट होगा. तो अगर आपका रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों ही रजिस्टर्ड है, देन रेसिपिएंट टीडीएस डिडक्ट करेगा 2% से और विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024. नेक्स्ट, अब कुछ रेस्ट ऑफ द गुड्स है. सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, इसमें सप्लायर वो होगा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न फ्रॉम द सिल्क कोकून, एंड रेसिपिएंट इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसी विल बी एप्लीकेबल. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑयल अदर देन सिट्रस फ्रूट्स, तो supplier unregistered person होगा and recipient will be any registered person and RC will be paid, GST will be paid by the recipient. Next, so there are some services under RCM, उसके अंदर जो GST होगा वो RCM में पे होगा, right? So the first one is GTA service. So goods transport agency in respect of transportation of goods by road only, अपन रेलवे की बात नहीं कर रहे, रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो रेसिपिएंट कौन होगा? A factory registered under Factories Act, society registered under Society Registration Act, cooperative society, body corporate, any partnership firm, whether registered or not, any casual taxable person located in the taxable territory and any registered person. अगर ये सारे रेसिपिएंट हैं तो आरसी में एप्लीकेबल होगा. अब इसमें कुछ एग्जम्पशन दे रखी है, मेगा एग्जम्पशन इसके अंदर वो डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जम्पशन इज कि अगर जीपी प्रोवाइड हो रहा है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसीज को, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ सेक्शन 51 में ले रखा है, तो ये सप्लाई ही एग्जाम हो जाएगी. तो इनको भी अब रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं. जो मैं बता रहा था एग्जाम्पशन बीच में आएंगे, ये भी वन ऑफ दोस एग्जाम्पशन. तो ये सप्लाई एग्जाम हो जाएगी, जीएसटी में लाएंगे. इफ दैट इंडिविजुअल इज अनरजिस्टर्ड, अगर इंडिविजुअल भी अनरजिस्टर्ड है, उसको जीपीएस का अप्लाई करना है, तो भी जीएसटी एग्जाम हो जाएगा, मेगा एग्जाम्पशन इसके बाद. और अगर जीपीए इन सब की सप्लाई कर रहा है, इन सारे गुड्स को सप्लाई कर रहा है. फर्स्ट इज रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, कैलेमिटीज ऑफ एक्सीडेंट, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, मतलब नेसेसिटी आइटम्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो फिर इसमें भी जीएसटी एग्जम्प्ट है. नेक्स्ट, अब क्या होता है, अगर ये जो आरसी में पे करने की चॉइस है जीपीए के ऊपर, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है जीएसटी के अंदर, तो उसके पास ऑप्शन है, वो एफसीए में भी जा सकता है, आरसी में भी जा सकता है. अब अगर वो एफसीए में जाता है तो उसके ऊपर उसके बाद दो ऑप्शन है एफसीए में जाने के बाद, 5% और 12%. अगर वो 5% देता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% लेगा तो आईटीसी मिल जाएगा. सेम अगर वो आरसीएम के अंदर जाता है तो 5% पे करना है रेसिपिएंट को अंडर द आरसीएम. नेक्स्ट, so there are some illustration. First read, Mr. A sent goods to Mr. B in Allahabad through Raj Transport Agency. ठीक है, Mr. B is liable to pay freight. Who will be liable to pay GST to the government? एक कंडीशन पड़ेगी, उसमें बताना कौन liable होगा. Mr. A and Mr. B both are not registered under GST, and Messrs. Raj Transport Agency has not opted to pay GST under FCM. एग्जाम हो गया क्योंकि इसने भी FCM नहीं दिया और वो भी रजिस्टर्ड नहीं है. नेक्स्ट वन, B RCM में पे होगा. नेक्स्ट, Mr. B is registered under GST and also Messrs. has opted to under RCM. So उसने opt कर लिया, right? Next one is Mr. A is registered under GST, also Messrs. Raj Transport Agency has not opted to pay GST under RCM. Next, why? Because he is not applied to the रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड क्योंकि वो लायबल था फ्रेट पे करने के लिए फर्स्ट टाइम हुआ, और जहां कंसीडरेशन पे है तो वही रेसिपिएंट होगा, ये रेसिपिएंट. तो ये एग्जांपल है. द फिफ्थ वन इज इन रिसीवर ऑफ द गुड्स इज मेसर्स बी एलएलपी नॉट रजिस्टर्ड एज जीएसटी एंड मेसर्स राज ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे जीएसटी इन एक्सचेंज. क्या होगा? measures B is liable to opt the registration and क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन है तो उसके साथ आरसीए नहीं लगेगा, इसको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन यू हैव टू पे जीएसटी अंडर आरसीए, राइट.
So this is all from my side. I request. So as Yogesh explained about the retail services, so moving further, we have advocate services. Here the supplier of service is an individual advocate, including a senior advocate or a firm of advocates. यहाँ पे रेस्पेक्ट कौन होगा? Any business entity located in the taxable territory. Basically, legal services में क्या क्या कवर करते हैं अपन? Services provided in a relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, and includes representation services. बेसिकली एडवोकेट सर्विसेज में सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट हो सकता है, सीनियर एडवोकेट हो सकता है, फर्म ऑफ एडवोकेट हो सकता है. बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. नेक्स्ट नेक्स्ट. तो इसमें एबीसी लिमिटेड है जो कि एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में. वो एक सीनियर एडवोकेट हायर कर रही है फॉर दी लीगल सर्विसेज. तो क्या इसमें जीएसटी पहली बार चार्ज होगा, और चार्ज होगा तो एफसीएम में होगा या आरसीएम में होगा? आरसीएम, क्योंकि इसमें सप्लायर होने सीनियर एडवोकेट है और जो रेसिपिएंट है वो है रेसिपिएंट अंडर जीएसटी. एक बार नेक्स्ट प्रीवियस एग्जम्पशंस. यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन दे रखी है कि अगर ये चारों के चारों कंडीशंस फुलफिल होगी तो इस केस में जीएसटी ही नहीं लगेगा. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम. तो बेसिकली अगर इसमें सप्लायर होगा अपना पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और एक इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट, बट इसमें सीनियर एडवोकेट कवर नहीं है. सर्विसेज कौन-कौन सी हो? लाइक कौन-कौन से रेसिपिएंट यहाँ पे कवर्ड है? एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, एनी पर्सन अदर देन द बिजनेस एंटिटी. थर्ड, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसी केस में भी, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी को भी कवर नहीं करेगा. यहाँ पे फोर्थ केस अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी इंक्लूडिंग पीएसयूज. नेक्स्ट. बेसिकली जो ये है इस वाले एग्जाम्पशंस में यहाँ पे सप्लायर होगा अपना सीनियर एडवोकेट, एंड यहाँ पे रेसिपिएंट कौन-कौन होंगे? एनी पर्सन अदर देन द बिजनेस एंटिटी. सेकंड, सेम कोई भी बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है. थर्ड, कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एंटिटी एंड पीएसयूज. इसमें ये है कि यहाँ पे इसका शर्मा है जो कि इंडिविजुअल है और वो एडवोकेट सर्विसेज ले रहे हैं फॉर दी पर्सनल पर्पस, एक सीनियर एडवोकेट से. तो क्या इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा? Excellent. क्योंकि other than business. Next. XYZ Limited, having its office in Rajasthan, hires Mr. Ram, a senior advocate, for legal service on court case on 12 July 2024. But XYZ Limited का turnover preceding financial year में only 11 lakh rupees था. तो क्या इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा? थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड नहीं होगा इसके. So the third service covered under the RCM is of arbitral tribunal. Basically इसमें सप्लायर कौन होगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा. रेसिपिएंट कौन होगा? Any business entity located in the taxable territory. Scope of service: arbitral tribunal is a panel of one or more adjudicators whose function is to set and resolve disputes by way of arbitration. Basically दो लोगों में कोर्ट के बाहर समझौता कराना, ये arbitral tribunal का फंक्शन होता है. Next. यहाँ पे भी एक एग्जाम्पशन दे रखे हैं क्योंकि जो अपन लास्ट सर्विस पढ़ी थी एडवोकेट से उससे सिमिलर ही है. Like arbitral tribunal provides services to any person other than business entity. Second, अगर कोई business entity का turnover preceding financial year में threshold से कम है. Third, government departments. So the next entry covered here is of sponsorship services. Here the supplier of services कोई भी person हो सकता है, यहाँ पे चाहे कि वो registered हो या ना हो. Recipient कौन होगा? Any body, corporate or partnership firm located in the taxable territory. Scope of service: services supplied by way of sponsorship to any body, corporate or partnership firm.
So let's take an example on it. XYZ Private Limited has paid 5 lakh for sponsorship of a sports event organized by Blue City Club in Jaipur. And the event was named after the brand name of XYZ Private Limited. तो क्या इसके इसमें लाइबल होगा? कौन लाइबल होगा? लाइक रेसिपिएंट होगा? XYZ लाइबल. So the next service is of government services. Like basically अगर अपन देखें कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है बिजनेस एंटिटी के अलावा तो वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होगी जीएसटी में. बट अगर गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई सी भी सर्विसेज दे रही है वो जीएसटी पे लायबल होगी. अगर या तो वो आरसीएम में हो सकती है या वो फॉरवर्ड चार्ज में हो सकती है. All services supplied by central government, state government, union territory और local authority, excluding the following. मतलब अगर ये 3 सर्विसेज खाली फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो वो आरसीएम में टैक्सेबल होगी. सर्विसेज है सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज. ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज अमेंडमेंट आएगा थोड़े टाइम पहले. सेकंड, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल. थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स. यहाँ पे एग्जम्पशंस दे रखी है कुछ, लाइक ऑल सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बी फॉलोइंग. पहला सेम जो अपन ने एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में पढ़ा था, किसी भी बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है. सेकंड, अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रही है तो वो जीएसटी से एग्जम्प्ट है. थर्ड, अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को भी कोई सर्विस दे रही है और अगर उसकी वैल्यू अप टू 5000 रुपीस है तो वो भी जीएसटी में एग्जम्प्ट है. सो एंट्री नंबर 5 है गवर्नमेंट. इसमें बेसिकली जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर हुई है ये पहले एंट्री नंबर 5 में कवर था बट कुछ टाइम पहले इसको एंट्री नंबर 5 में लाया गया है. सप्लाई कौन होगा इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी. रेसिपिएंट कौन होगा? या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है या फिर बिजनेस एंटिटी को स्पेसिफाई नहीं करा गया है. सो नेक्स्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन इट. एक राजेश है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में. उसने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से एक ऑफिस लिया है रेंट पे एंड उसको he has paid 2 lakh rupees. So here Rajesh is liable to pay GST under RCM क्योंकि अपने आप पे रेसिपिएंट है, any person covered under GST. बिजनेस एंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे राजेश लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए. एंट्री नंबर 5 डबल है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. Here the supplier of service is any person but the recipient of service should be registered under GST. एक फ्लो चार्ट से अपन समझते हैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की टैक्सेबिलिटी. लाइक अगर मेरा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है और अगर उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है फॉर अ कमर्शियल यूज देन आरसीएम विल बी एप्लीकेबल. बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने रेसिडेंशियल यूज के लिए भी दिया है तो भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा. लाइक अगर मतलब मेरा नेचर डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने किस नेचर के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है. अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उसको आरसीएम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा. बट अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसने कमर्शियल यूज के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है देन इन दिस केस आरसीएम विल बी एप्लीकेबल. बट अगर उसने रेजिडेंशियल यूज के लिए ली है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा. Entry number 5B and 5C, TDR, FSI and long-term lease. Can anybody know the meaning of TDR or FSI? Basically, the concept of it. Load space projects and long-term leases. Yes, TDR, FSI, papers, तेज मत करो. तेरा ही माइक से हमला सब लैपटॉप इसके लेना. TDR, FSI and long-term lease. It would be a special case कि अगर मैं एक लैंड ओनर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उस पे लैंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करके दूसरों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ. तो मैं अपनी लैंड एक बिल्डर को देता हूँ. इसके अंदर स्पेशल केसेस क्या आते हैं कि मोस्टली बिल्डर को उस चीज का आरसीएम पे नहीं करना पड़ता अनलेस उसकी आउटपुट सप्लाई पर भी जीएसटी लग रहा है.
which would be exempt in, which would be 1% and 5% in residential, affordable prices and non-affordable prices. अगर अपन एफएसआई और टीडीआर को एक एग्जांपल से समझे तो ये होता है कि अगर सपोज 10,000 स्क्वायर फीट एक प्लॉट है जिसपे अपन को बिल्डिंग बनानी है, तो जो लैंड ओनर है उसने प्रमोटर को बोल दिया कि इस पे बिल्डिंग बनानी है, तो बेसिकली एक फ्लोर स्पेस इंडेक्स एक रेशियो होता है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनाती है। तो लाइक सपोज अगर वो 2 टाइम्स है तो 20,000 स्क्वायर फीट का टोटल फ्लोर स्पेस इंडेक्स होना चाहिए। लाइक अगर अपन 2 फ्लोर बना रहे हैं तो 10,000 स्क्वायर फीट की एक फ्लोर होनी चाहिए स्पेस। सो हियर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज एनी पर्सन, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस प्रमोटर होगा, services supplied by any person by way of transfer of development rights or floor space index for construction of a project by a promoter. Next. Scope for service for 5C. 5C में basically long term leases cover होती है. Long term lease of land 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount and or periodic rent for construction of a project by a promoter. तो बेसिकली जैसा कि लक्ष्य ने भी बताया था कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले कोई एडवांस पेमेंट आ जाता है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर वापस जीएसटी लग गया है तो इस केस में अगर टीडीआर या एफएसआई हो रहा है तो इस केस में वो एग्जम्प्ट हो जाएगा जीएसटी। बट अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद पेमेंट आ रहा है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो उस केस में वैल्यू ऑफ फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट यहाँ पे टीडीआर और एफएसआई में जीएसटी टैक्सेबल होता है। सो यहाँ पे रेट भी 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस एंड 5% इन केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस। एंड इन नंबर 6 डायरेक्ट टीडीआर पीछे सबको समझ में आ गया? हाँ ना कुछ तो बोलो, लास्ट बेंच एकदम लास्ट। विवेक क्या हो रहा है? हो रहा तेरे बाजू वाले को बता दे, तीसरा बताया उसका, तेरा भी हो रहा है? हर्षनी बता देगी बैठे इसलिए के पीछे जाके। टीडीआर क्या होता है? पीछे सोने के लिए बैठता कर क्या रहता? कोई बता दो पिछले बेंच से, गूगल कर लिया हुआ है। हर्षित है क्या वो कोने में? ऋषभ, तू तो बता, बिल्डर की ऑडिट करके आया यार। बता, इसने भी जो बताया ना और उसने भी जो बताया वो इतना क्लियर नहीं था, तो तेरे को बताना चाहिए। आगे आगे जैसे कोई बड़ी जगह है तो वहाँ पे जो लैंड के डेवलपमेंट राइट्स है कि इधर फ्लैट बना के बिल्डर तो उनके लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं जो ओनर्स है वहाँ के, तो उनको दे देगा। तेरी जमीन है, इसकी जमीन है, इसने तेरे को जमीन नहीं बेची, इसने तेरे को बोला डेवलपमेंट राइट्स है, बस डेवलपमेंट राइट्स की मैं डेवलप करूँगा उसके ऊपर। तो महिमा वालों के पास गया लक्ष्य कि मेरी जमीन आ जाओ मिलके, हाँ बता, मुझे समझ में आया। इसके बाद फिर जैसे इसमें टीडीआर में ऐसा होता है कि ठीक है डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो गए, अब उसके बाद जो इसका जो फ्लैट बन गया, फ्लैट पे जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उससे पहले तक जो भी बिल्डर को पैसा रिसीव हो गया ना, तो जो भी एडवांस मनी या फिर फुल कंसिडरेशन रिसीव हो गई, फुल कंसिडरेशन तो कहां से होगा, मतलब एडवांस कंसिडरेशन जिसका बुकिंग हो गया, फ्लैट बुकिंग हो गई, तो उनके केस में उस अमाउंट पे एफसीएम लग जाएगा अपना, वो बंदा बिल्डर खुद पे कर देगा। अब जो सीसी के बाद आया अमाउंट या फिर वो लोग सीसी के बाद आए, तो फिर एक तरह से सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, तो शेड्यूल सी में कवर्ड है, तो उस केस में आरसीएम लगेगा उसमें, फिर उसको बिल्डर को आरसीएम पे करना पड़ेगा।
किस चीज पे? बेसिकली क्या हुआ, जिसकी जमीन है उसके पास एक राइट, एक तरह से मानो एक राइट है डेवलपमेंट करने का, जो उसने बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बदले वो पैसे भी ले रहा है। भाई जो फ्लैट बिक रहा है उससे पैसे भी आ रहे हैं, तो जब तक जीएसटी लग रहा है, तो जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो जो भी बायर है फ्लैट का, वो जब पेमेंट कर रहा है तो जीएसटी भी उस केस पे बिल्डर जमा कर रहा है। लेकिन जिस दिन वो रुक गया, उस दिन जो लैंड ओनर को पैसा मिल रहा है इनडायरेक्टली, वो विदाउट जीएसटी हो गया, जबकि उसने भी एक राइट ट्रांसफर करा है बिल्डर को। देख बीच में ये भी ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फ्लैट ओनर और लैंड ओनर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेवलपर और लैंड ओनर के बीच में ट्रांजैक्शन है, जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा आफ्टर कंप्लीशन। उस केस में आरसी उनको जगह वापस चाहिए। So the next service covered here is object director. Number 6. So here is the supplier of service is the director of the company or body corporate. Recipient कौन होगा यहाँ पे? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे कि अपन को पता है कि अगर जैसे कोई भी एम्प्लॉय है और अगर वो कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, तो वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, वो नेगेटिव रिस्क में कवर्ड हो रहा है। तो अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय के नेचर में सर्विसेज दे रहा है, तो उस अमाउंट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें एक चीज अपन को ये ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर 190 डिडक्ट हो रहा है उस केस में वो अपन को एम्प्लॉय के नेचर में मानेंगे। बट अगर कंपनी से डायरेक्टर को सैलरी के अलावा कोई प्रोफेशनल फीस भी मिल रही है, जिस पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे में कट रहा है, तो उस केस में वो इस एंट्री में कवर होगा और आरसीएम में कंपनी को टीडीएस जीएसटी जमा करवाना होगा। एक ये सर्कुलर आया था थोड़े टाइम पहले कि सर्विसेज इश्यूड बाय डायरेक्टर्स टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम। लाइक अगर डायरेक्टर का कोई ऑफिस पड़ा था, तो उस ऑफिस को डायरेक्टर ने कंपनी को रेंट पे दे दिया, तो इस केस में कोई मतलब उसने कोई डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं दिया, अगर वो डायरेक्टर नहीं भी होता तो भी वो रेंट पे दे सकता था उसको प्रॉपर्टी को, तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो पर्सनल कैपेसिटी के अलावा कोई डायरेक्टर की कैपेसिटी में दे रहा है, तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। The services provided by independent directors or those who are not the employees of the company are clearly outside the scope of Schedule 3, and therefore company is liable to discharge the applicable GST under RCM. कोई like independent directors है, वो तो simply employee होते नहीं है, इस केस में RCM applicable होगा। Further, the part of employee directors remuneration which is declared separately other than the salaries and subject to TDS under section 194(a), then it is outside the scope of Schedule 3 and therefore taxable under RC. ये जो लास्ट जो सर्कुलर था ना कि पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, हाँ, एज ए डायरेक्टर तो आरसी नहीं आएगा, लेकिन आज की डेट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों केस में आरसी अब एग्जांपल चेंज करना। So the next service covered here is of insurance agent. Supplier यहाँ पे insurance agent है, recipient लाइक कमीशन या फीस जो भी देती है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा और कंपनी को जीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ रिकवरी एजेंट। सप्लायर ऑफ सर्विस यहाँ पे रिकवरी एजेंट होगा। रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सो बेसिकली कोई भी रिकवरी लाइक जब बैंक के लोन से डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो बैंक अपॉइंट करते हैं रिकवरी एजेंट को।
तो वो रिकवरी एजेंट बैंक के बिहाफ पे जो भी उनका लोन अमाउंट ड्यू होता है उनकी रिकवरी करके दे सकते हैं। एक एग्जांपल है, a recovery agent is hired by a bank X to recover outstanding loans from borrowers who have defaulted on repayments. The recovery agent contacts the defaulters and negotiates repayment terms and collects the overdue payment on behalf of the bank. In return, the bank X pays commission of ₹1 lakh to recovery agent. So इस केस में बैंक को ₹1 lakh पे GST डिडक्ट करना पड़ेगा और डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। Next service is of services by music composer, photographer, artist. Here the supplier of service is music composer, photographer, artist. Recipient, music company, producer or the like located in a taxable territory. Scope of services में क्या कवर है यहाँ पे? अगर कोई भी like music composer, photographer या artist ट्रांसफर कर रहा है या permitting the use or enjoyment of the copyright relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like. एक एग्जांपल लेते हैं, a music composer named Composer X is hired by a film production house, film studio by, to create an original soundtrack for an upcoming movie. Composer X creates a music and records the soundtrack for the movie and इसके बदले में म्यूजिक कंपोजर को 5 लाख रुपीस मिल रहे हैं। तो इस केस में जो लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है तो उसके इसको 5 लाख के ऊपर जीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर के आरसी। Entry 9 services by author. Here the supplier of services is author and the recipient is publisher located in the taxable territory. Scope of service is same here like supply by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright relating to original literacy works to a publisher. Exemptions. इसमें exemption ये दे रखी है कि अगर ऑथर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और अगर वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर दूंगा और ये डिक्लेरेशन इनवॉइस पे मेंशन है, तो इस केस में लायबिलिटी पब्लिशर से हटकर और ऑथर पे आ जाएगा, उसको फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। Services by members of overseeing committee. Here the supplier of service is the members of overseeing committee constituted by RBI. Recipient RBI होगा। Like जो भी overseeing committee RBI को services देगी तो उसमें RBI को टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। Entry number 11 services by direct selling agents. Direct selling agents basically वो होते हैं कोई individuals होते हैं जो कि बैंक के loans को या बैंक की activities को promote करते हैं। Here the supplier of services individual direct selling agents other than body corporate partnership or LLP. Supplier में खाली individual direct selling agent ही covered होगा, कोई body corporate या कोई partnership firm covered नहीं होगी। Recipient banking company, NBFC, financial company जो कि located in taxable territory. Let's take an example. Messrs Universal Solutions, a registered partnership firm, provided direct selling agent services to Jet Bank Limited for 4 lakh rupees. तो क्या इस केस में आरसी में एप्लीकेबल होगा? Because here the supplier is partnership firm, not an individual. Services by business facilitator. Here the supplier of service is business facilitator. Recipient banking company located in the taxable territory. Scope of services क्या है? Supplier of services by the business facilitator to banking company. Business facilitator basically एक intermediary होता है, ये भी बैंकिंग के जो functions होते हैं उनको प्रमोट करता है, like accounts opening, loan, borrowing वगैरह। और एक अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे business correspondent. Basically business facilitator थोड़े छोटे लेवल की एंटिटी होती है और business correspondent लार्ज लेवल की एंटिटीज होती है। ये एक डिफरेंस है। और इसमें क्या डिफरेंस हुआ फिर जो अपने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फैसिलिटेटर। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स खाली लोन्स को ही करते हैं प्रमोट और वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर अकाउंट ओपनिंग और जो भी फंक्शंस होते हैं बैंक एक क्वेरी
अपन ने अगर किसी को हायर करा, अगर अपन हायर करने की जगह अपन वो लोन अगर रिकवरी से कुछ लेना इसमें जीएसटी नहीं आएगा। मतलब अगर अपन ने एजेंट अपॉइंट करा है, लाइक ऐसे होता है कि लाइक अगर मुझे किसी से 5 लाख रुपए नहीं मिलते और रिकवरी एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको आज 7.5 लाख रुपए दे दूंगा, तो फिर मेरे ऊपर है अगर वो मुझे बाद में पैसा देगा या नहीं। तो ये वाला केस इस सेंटर में कवर नहीं है। इसमें एक एग्रीमेंट होता है कि पूरा का पूरा पैसा पहले बैंक के पास से जाएगा, फिर उस पे कोई परसेंटेज ऑफ कमीशन रिकवरी एजेंट को मिलता है। ऐसा होता है ना अपने फिर अपन अपना वो लोन भी अपन से कर रहे हैं रिकवरी। हाँ, तो उस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करते हैं। इस पे ये सेंटिमेंट तो कवर नहीं है, फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। Services by agent of business correspondent. Here the supplier of service is agent of business correspondent, recipient business correspondent located in a taxable territory. अपन ने business facilitator में पढ़ा था कि supplier तो था business facilitator, recipient है banking है, but इस केस में supplier है agent of business correspondent और recipient है business correspondent. अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट डायरेक्टली बैंक को सर्विसेज दे रहा है तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा इस केस में, क्योंकि बिजनेस के कॉरेस्पॉन्डेंट आर बेसिकली लार्ज लेवल एंटिटीज। Services given by agent of business correspondent to business correspondent is covered under this entry. However, if services are given by business correspondent to banking company, then the business correspondent is liable to pay GST under forward charge mechanism. एक यहाँ पे एग्जम्पशन दे रखा था, लाइक अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो किसी बैंक को सर्विसेज दे रहा है जिसकी ब्रांच अगर रूरल एरिया में एस्टैब्लिश है, तो उस केस में एग्जम्पशन है, मेगा एग्जम्पशन में कवर्ड है। Entry number 14, security services. Here the supplier of service is any person other than a body corporate, recipient, registered person located in the taxable territory. बेसिकली दो कंडीशंस दे रखी है, यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइक अगर फर्स्ट में अगर मेरा रेसिडेंट कोई डिपार्टमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज, अगर इन सब ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दे रखा है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, और अगर वो कोई अलग से टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं तो वो इस कंडीशन में कवर होंगे और आरसीएम नहीं लगेगा। सेकंड, अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में कवर्ड है तो उस केस में भी आरसीएम नहीं लगेगा। Let's take an example. Messrs PQR, a partnership concerned, and the registered supplier under GST is engaged in providing security services. During a month, it had made foreign supplies. पहला उन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज दिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, a registered person under GST. तो क्या इसमें आरसीएम लगेगा? फर्स्ट में आरसीएम लगेगा क्योंकि इसमें कंडीशन थी सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट जो होगा रजिस्टर्ड पर्सन। एंड सेकंड में सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं पीएसआर ट्रस्ट को जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, तो इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। So entry number 15, services provided by renting a motor vehicle. Here the supplier of service is any person other than a body corporation and does not issue invoice charging CGST. PSR trust school चला रहा है, वो exempt हो सकता है if security services are provided within the precincts of school. पीछे क्यों चलाते हैं? रोशन करने को लाइसेंस PSR trust वो एग्जांपल एक पेज और एक और अगर अपन ये मान लें कि PSR trust एक स्कूल चला रहा है, which is the definition of educational institute as per GST. स्कूल है या स्कूल में पढ़ाना
उस केस में एग्जाम हो जाएगा। नहीं तो अगर इस एंट्री में कवर होना चाहिए तो रेसिडेंट अपना बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए इस केस में। बट मैं कह रहा हूँ सेक्शन 11 मेगा एग्जेम्पशन हाँ, अगर स्कूल्स एग्जम्प्टेड है जीएसटी में, जैसे कि अपन को पता है, तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कहना क्या चाह रहा है? अभी तो जो आरसीएम की बात हो रही है वो खाली कॉर्पोरेट वाले पे होगी, सिक्योरिटी सर्विस पे। तो कह रहा है कि ट्रस्ट को मैं इसलिए एग्जाम मान रहा हूँ कि ट्रस्ट अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होगी तब एग्जाम तो स्कूल चला दिया एज पर जीएसटी एक्ट वो एग्जाम हो जाएगा। हम ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि पीएसआर ट्रस्ट में जीएसटी एग्जाम लगेगा क्या है। तो कह रहा है इसने ये मानते हुए इसको एग्जाम माना है। ये देखो अगर ये पॉसिबिलिटी है कि स्कूल चला पॉसिबिलिटी नहीं बताइए अगर स्कूल हो Services provided by renting of motor vehicle. So here is the supplier of services any person other than a body corporate and does not issue invoice charging CGST at the rate of 6% to the service recipient. या फिर recipient कौन होगा? Any body corporate located in the taxable territory. What is the scope of service? Services provided by way of renting of motor vehicles designed to carry passengers, where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient. Basically यहाँ पे जो रेंट करता है मोटर व्हीकल, तो अगर सप्लायर बिल में जीएसटी चार्ज कर रहा है एट द रेट ऑफ 12%, देन फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो कंसिडरेशन में इंक्लूड होनी चाहिए, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। एक क्लैरिफिकेशन आया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में क्या डिफरेंस है। It is clarified that where the body corporate hires the motor vehicle for a period of time during which the motor vehicle shall be at the disposal of the body corporate, like recipient उसको किसी भी मैनर में यूज कर सकता है, तो इस केस में उसको राइट मिल जाता है, तो अपन उसको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कंसीडर करेंगे। Here is a flow chart. Like अगर कोई रेंटिंग कर रहे हैं अपन मोटर व्हीकल की और जो वो मोटर व्हीकल डिजाइन हुआ है, इट इज फॉर द डिजाइन टू कैरी गुड्स, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। बट अगर वो मोटर व्हीकल डिजाइन हुआ है टू कैरी पैसेंजर्स और अगर फ्यूल की कॉस्ट कंसीडरेशन में इंक्लूडेड नहीं है, तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूडेड है कंसीडरेशन में, तो अगेन दो ऑप्शन आएंगे, या तो सप्लायर 12% वाला ऑप्ट करेगा या सप्लायर 5% वाला ऑप्ट करेगा। अगर सप्लायर 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है और सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे कि अपन ने पहले कंडीशन में पढ़ा था, सप्लायर यहाँ पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, बट अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज चलेगा, इस एंट्री से वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है एंड वो सप्लाई कर रहा है रेंटिंग सर्विसेज टू ए बॉडी कॉर्पोरेट, सो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। Let's take an example. Messrs ABC, a partnership concerned and a registered supplier under GST, is engaged in providing renting of motor vehicle services. During the month, it had made the following supplies: renting of motor vehicle to Amaze Fuels Limited and supply value included cost of fuel. तो क्या इस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे सप्लाई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विसेज दे रहे बॉडी कॉर्पोरेट को, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो, और कॉस्ट भी जो फ्यूल की कॉस्ट है वो भी कंसीडरेशन में इंक्लूडेड है। सेकंड वाले पॉइंट में अगर अपन देखें कि सर्विसेज दे रहे प्रीतियस कंपनीज जो कि सीए फर्म है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। So that's all from my side. Now
वो सर थोड़ी दुख रहा है किसी का पीछे सही हो गया। तेरा तो हो रहा है, मतलब मैं किसी और को कुछ पूछूं तो बोले मेरा सर दुख रहा है, ऐसा तो नहीं, मैं तो नाम नहीं जानता। बेसिकली कोई खुद से खड़ा होकर बता सकता है कि शॉर्ट में कि आरसीएम की जरूरत क्यों पड़ी, वाई आरसीएम, जब डायरेक्ट चार्ज हो सकता है तो रिवर्स चार्ज की जरूरत थी। तो हर केस में फिर सप्लायर पे डाल दो पड़ा इस पे वकीलों के लिए ना हो सकता है किसी को एडवोकेट को पूरा लग जाए। हार्ड टेक्स्ट एरियाज हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सामने से ट्रांसपोर्टर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, वहाँ वो हो सकता है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं और ऐसा नहीं कि वो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। गुड्स के केस में तो अपन देखेंगे तो शायद स्क्रैप वेंडर्स और एग्रीकल्चर, ये दो ही लोग हैं। गुड्स और किसी का था क्या? गुड्स के केस में सर्विस में तो सारे बदमाश बने। एग्रीकल्चरिस्ट तो बेसिकली कंसेप्ट में समझो गुड्स के केस में जहाँ एग्रीकल्चरिस्ट के स्क्रैप वेंडर्स है और सर्विस के केस में जहाँ पे विश्वास कम है और गवर्नमेंट ने साथ साथ में खुद को भी इजी कर लिया कि हमारे भी साथ में चला देते हैं, तो ये ऐसे आरसीएम है। आरसीएम में कंफ्यूजन फिर धीरे धीरे वो कुछ केसेस में आगे जहाँ जीटीए को दे दिया कि तुम खुद भी ले सकते हो और सामने वाला भी ले सकता है, लेकिन वहाँ पे आप ये देखो कि आप जहाँ एज अ ऑल्टर जा रहे हो ना, उस कैपेसिटी में समझो कि अपने पे तो लगना ही लगना है, सामने वाला चार्ज कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो अपने को चार्ज करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी और रीजन से कि जीएसटी नहीं है। इतना बेसिक आरसी नहीं है। अब इसमें कई चीजें उन्होंने अभी मैंने नोटिस करी, चीज मिस कर दी। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे उन्होंने कहा आरसी में, लेकिन आज की डेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी आरसी, तो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी पे आरसी है अगर सामने वाला चार्ज नहीं कर रहा। ये आरसी बच रहा है क्या? 9499। मोस्ट ऑफ द सर्विस जो है आयुष ने कवर कर ली। रिमेनिंग दो सर्विसेज मैं कवर करूंगा जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल है। पहली है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें आपको समझने के लिए सर्विस पहले लैंडर, बोरोवर का मीनिंग और इंटरमीडिएट का मीनिंग पता चलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में lender. Lender is a person who deposits his security or any other person on his behalf deposits his security to the intermediary under this scheme. अगर कोई जो lender है वो deposit करता है security intermediary को, intermediary वो है जो registered है with the SEBI for this purpose. और borrower is a person who borrows the security under the scheme to an approved intermediary. जो borrower है जो कंसिडरेशन लेंडर को पे करेगा, इस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ये सिक्योरिटी को गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस है, लेकिन रेंट की सर्विस है क्या? सिक्योरिटी रेंटल सर्विस है, सिक्योरिटी का गुड्स। हाँ, लैंडिंग पे चार्ज हो रहा है, जो कंसीडर होगा लैंडिंग पे दे रहा है उसका रेंटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज आ सेक्शन 79 को रेफर करते हैं। वही कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर सिक्योरिटी ना तो गुड है ना सर्विस, क्योंकि दोनों में एक्सक्लूड है भाई ये सिक्योरिटी उसकी सप्लाई के लिए स्पेशल केसेस है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज आरसीएम है। वो लैंडिंग करना सर्विस है। अगर चार्जिंग सेक्शन में आप नहीं आ रहे तो आगे तो बढ़ नहीं सकते। वो एज अ गुड नहीं आ रहे, उसको लैंड करना सर्विस है। नीदर एज अ गुड नीदर एज अ सर्विस, दोनों की डेफिनेशन सिक्योरिटी सर्विस नहीं, सिक्योरिटी को लैंड करना सर्विस बोल रहा हूं।
सिक्योरिटी स्पेस ये कह रहा है लोन देना सर्विस नहीं है, लेकिन लोन पे जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है इंक्लूडेड है। अपन अगर सर्विसेज की डेफिनेशन देखते हैं तो इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी, इट डज नॉट इंक्लूड यूज ऑफ सिक्योरिटी। इसीलिए तो क्लैरिफिकेशन है। चार्जिंग सेक्शन ही हिट नहीं होगा तो अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम लॉ में हमें ये पढ़ाएंगे कि आप पहले चार्जिंग सेक्शन चेक करेंगे, फिर आप आगे पूरा ये कोई सर्कुलर के थ्रू आया होगा ना? अगर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन खोल के पढ़ा। चार्जिंग सेक्शन 7 लगता है। 7(1) क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, ये सब दोनों में तो चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर हो गया सिक्योरिटी। तो उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दैट इज नॉट एडमिसिबल डेफिनेशन। ये तो जीएसटी लगाएंगे कैसे? Second one is import of services. Any person, supplier is any person located in non-taxable territory who supplies to a person located in taxable territories. मतलब import of services पे आरसी मानते हैं। लेकिन एक केस है जैसे गूगल वगैरह भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपन सबको अपन अवेल करते हैं उनकी क्लाउड सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज। लेकिन उस पर अपन ने आज तक टैक्स पे नहीं किया आरसी में। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन कोई आज तक टैक्स पे नहीं किया। उसका क्या रीजन है? अपन गूगल की सर्विसेज लेते हैं, इसकी क्लाउड सर्विसेज लेते हैं, अमेज़न की लेते हैं, उस पर अपन ने कभी टैक्स पे नहीं किया आरसी में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो, लेकिन उस पर कभी टैक्स को पे नहीं किया। जो गूगल वगैरह की जो सर्विसेज है वो OIDR सर्विसेज है, और अपन जो है अनरजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल पर्सन है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये जो एंट्री है वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट पे एप्लीकेबल नहीं होती है। Here the type of services, if it is OIDR services, will include advertising, cloud services, e-books, digital, and any is supplied by any person located in taxable territory to a unregistered person, that is the unregistered person receiving online information and database access for retrieval services located in taxable territory. The exception है. In this case, OIDR services FCM will be applicable. अब ये सेक्शन 24 के हिसाब से जो OIDR सर्विसेज गूगल वगैरह है, इंस्टाग्राम, गूगल, मेटा, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है सेक्शन 24 के हिसाब से, जो कि वो OIDR सर्विसेज करेक्ट विद अनरजिस्टर्ड पर्सन. Now GST on real estate sector. These are the effective rates that are applicable on real estate sector. First, sale of land is covered under Schedule 3 of CGST Act, which specifies that it is neither a supply of goods nor a supply of services. It's covered under Schedule 3. And the second one is sale of land and building, where entire consideration is received after issuance of completion certificate. अगर ₹1 भी कंसिडरेशन मिल गया अपन को कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, तो उस पे जीएसटी आता है। लेकिन अगर ₹1 भी नहीं मिला, मतलब पूरा कंसिडरेशन बाद में मिलता है, तो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया, नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया। वही पीछे और पीछे एक और 1% without ITC on construction of affordable houses in metro cities. 60 square meter is affordable house limit, and 90 square meter in non-metro cities, and value should be up to 45 lakh. In that case, 1% will be the GST rate and no ITC will be available. And second is 5% without ITC. It is applicable on construction on all houses other than affordable houses. जो affordable houses में नहीं आते और residential property एक builder बेचता है, तो उसमें 5% GST आता है without ITC. And second one is commercial apartments. जैसे कोई residential area है, देखिए उसमें कई commercial apartments होते हैं, लोग अपनी दुकान वगैरह खोल के रखते हैं, shops, office. लेकिन उसमें ना rate जो है 5% आएगी, commercial property की नहीं आएगी, क्योंकि 15% से ज़्यादा अगर exceed नहीं करता है commercial apartment, तो उसे रेजिडेंशियल ही माना जाता है, और 5% एप्लीकेबल होता है रेट विदाउट आईटीसी। अब ये जो 1% आईटीसी विदाउट आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी जो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है रियल एस्टेट सेक्टर में, उसमें दो कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। पहली है आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल, सेकंड इज दैट 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अदर देन TDR, FCI,
diesel, sport, natural gas should be purchased from the registered person. ये जनरली सेक्शन क्यों लाया गया है, कंडीशन क्यों लाई गई है, कोई बता सकता है? 80% की लिमिट क्यों लाई गई रजिस्टर्ड पर्सन से? मैक्सिमम टैक्स एफसीएम में ही पे होता है। ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों लाई गई? Because real estate is highly unregulated. उसमें अनरेगुलेटेड कैश ट्रांजैक्शंस काफी होते हैं, तो उसको रेगुलेशन में लाने के लिए, ट्रेस ट्रांजैक्शन ट्रेस करने के लिए लोग क्या करते थे, कैश में माल परचेज करते थे अनरजिस्टर्ड सप्लायर से और फिर उसको 1% आईटीसी में बेचते, तो ब्लैक का माल व्हाइट में बेच के कन्वर्ट करते थे। तो इस कारण इस सेक्टर को रेगुलेशन में लाने के लिए, कंप्लायंस पूरी करवाने के लिए 80% ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करना मैंडेटरी कर देगा अगर आपको ये वाली रेट्स का बेनिफिट लेना है। बाकी कमर्शियल अपार्टमेंट्स है उसमें 12% विद आईटीसी रेट एप्लीकेबल है, बट ये जो मैंने रेट बताई 12%, 1%, 5%, ये रेट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1/3 वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड जो है एग्जेम्प्ट ऑफ द लीगल सप्लाई नहीं है, तो ऐसे तो 18% है इस पर रेट, लेकिन अपन जब 1/3 वैल्यू ऑफ लैंड हटा दें तो उस पे इफेक्टिव रेट 12% हो जाती है। नेक्स्ट इज द goods and services notified under section 9 subsection 4. In this section only those specified categories of services that are notified by the government under section 9 subsection 4 will be covered. Here unregistered person, here the goods are purchased, goods and services are purchased from the unregistered person by a registered specified registered person. This notification it was brought by the notification number 7 2019 into the real estate sector. Now only real estate sector is covered. Earlier almost all the expenses from the unregistered supplier were covered. Now after this notification only real estate sector is covered in the section 9 subsection 4. Purpose was that I have mentioned already that 80% जो है अपन थोड़ी बहुत लिबर्टी भी दी गई है कि 20% आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से परचेज कर सकते हो, 80% आपको registered person से परचेज करना। The notification are for the three things. पहला input services, all the inputs and input services that are purchased by a real estate promoter, उसको तो 80% जो है वो उसको registered person से ही परचेज करना होता है। अगर उसमें शॉर्टफॉल से आपने मान लो 75% ही परचेज करा तो रिमेनिंग 5% पे जो है आरसीएम एप्लीकेबल होता है। बाकी सीमेंट आपने 1 रुपए भी परचेज कर दिया तो उस पे आरसीएम टैक्स एप्लीकेबल। कैपिटल गुड्स का भी सेम है, अगर कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हो तो उसमें भी आपको रजिस्टर्ड प्रमोटर को आरसीएम टैक्स पे करना पड़ता है। Illustration है कुछ। ABC Private Limited is constructing a commercial property. The company procures construction material and services from the both registered and unregistered suppliers. Case 1, purchase from a registered supplier. Supplier is XYZ Cement Limited, material cement, invoice value 5 lakh and GST rate is 28%. Can anyone tell what will be the GST mechanism here? Either it will be RCM or it will be FCM. Why? supplier is registered with the cement supplier is cement supplier से अपन को परचेज करना है तो उस पे 100% आपको सेल में देना पड़ता है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज Here the supplier is registered. And whether the ITC will be available here? depends on person अगर आपको कंसिडरेशन रिसीव I किया have mentioned I think case of commercial property हम ITC ले सकते हैं, ये commercial property में डील करता है। अगर ये डील करता residential property में तो इसका ITC उसको available नहीं होता, 1% और 5% वाली rate applicable होती है। Second is purchase from unregistered supplier, उसने मशीनरी परचेज करी तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा है GST में? RCM आएगा और इनपुट मिलेगा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। Last one is अगर total value of purchase from unregistered supplier जो है वो 2,50,000 है और total inward supply जो है 10 lakh की है, registered supplier से 7,50,000 है। तो how much amount will be payable by promoter in RCM?
250 पे and 15,000 पे 12% RCB people के. Some of these are the record keeping requirements. What are the documents that need to be prepared by the promoter and what are his regulatory requirements? Project-wise accounting is to be made at whether what are the purchases is made from registered suppliers, what are the purchases is made from unregistered suppliers, and any shortfall of that is to be reported by him at the end of the financial year. It has to maintain the project-wise accounting report for it. इसमें कितना registered से purchase करा, कितना unregistered से purchase करा. Electronic submission. The reporter must submit the account in the prescribed form electronically on the common portal by the end of the quarter following the financial year. मतलब जो 31st March के financial year end हो जाता है, so first quarter जो जून को आएगा, end होएगा, उसमें इसको electronic submit करना पड़ता है records की किसने registered supplier से purchase किया, कितना unregistered से purchase किया. Or any shortfall of inward supplies from unregistered person. So determine share. मतलब जो registered person से इसको 80% करना था, मान लो उससे 75% दिया, फिर 5% उसने RCM में टैक्स पे किया, उसको अगले फाइनेंशियल एंड होने तक कैलकुलेट करना था और उसको जमा करना पड़ता है अगले साल के जून क्वार्टर के एंड में, फर्स्ट क्वार्टर. Now there is a GST on electronic commerce operator that used to deal with it on all with Zomato, Swiggy. These are the issues here. ECU definition is there. As per section 2, subsection 4(5) of the electronic commerce operator means any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce. It displays product as well as services that are actually supplied by some other person to the customer and their electronic portal. Can anyone tell if I deal only ECU है, जैसे Amazon है, उसने वो खुद का माल परचेज करा है, खुद का माल परचेज करा, उन्होंने परचेज करा, वो खुद बेच रहा है, कोई और की गारंटी नहीं बेच रहा. उसके क्या सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 टू ECU पे लगता है, वो एप्लीकेबल होगा क्या? इसमें ECU जो है उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा. सिर्फ पे जो उसने सप्लाई करा किसी और के बिहार पे, पोर्टल से जो सप्लाई खुद का माल सप्लाई करता है तो उसमें ECU एप्लीकेबल, ये वाले जो 9(5) है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. सेक्शन 2 सेक्शन डील करते हैं ECU से जीएसटी में करेंगे. एक तो 95 जिसमें 100% जो लायबिलिटी है वो ECU की होती है टैक्स पेमेंट की, सप्लायर पे इसमें कोई बर्डन नहीं होता पेमेंट का. दूसरा है सेक्शन 52, इसमें लायबिलिटी टीसीएस डिडक्ट करने की होती है ECU की और पेमेंट जो है सप्लायर को ही करना पड़ता है जीएसटी को अल्टीमेटली टू दी गवर्नमेंट. सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कुछ सर्विसेज कवर्ड है जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा लाई गई है. ओपन liability, जैसे हमने कहा था liability of ECU under section 95 is only on the ECU. और अगर ECU का कोई physical presence नहीं है in taxable territory, तो एक representative, then person representing such ECU for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. अगर उसका कोई physical presence नहीं है तो उसको representative appoint करना पड़ता है to pay the tax. If ECU does not have any physical presence and also does not have a representative in India, then he has to separately appoint a representative to pay such tax. These are the notified services under section 9 subsection 5 on which entire liability will be on the ECU to pay the tax. First is transportation of passenger by मतलब ये जो सर्विसेज ओला उबर जो अपन रोज डील करते हैं उसमें जो पेमेंट अपन करते हैं जीएसटी कंपोनेंट का वो ECU को पेमेंट करते हैं. ECU के पास जो अल्टीमेट लायबिलिटी जैसे ओला है, ओला के ऊपर अल्टीमेट लायबिलिटी होती है वो पेमेंट करे गवर्नमेंट को. जो सप्लायर कैब ड्राइवर वगैरह है उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, कैब ड्राइवर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी होता है, वो मैटर नहीं करता. इसमें जो लायबिलिटी होगी अल्टीमेट वो ओला उबर रैपिडो ECU की होगी. इसमें एग्जांपल है फॉर example, Mr. Rahul opens his Ola app and book a ride to an airport, and Ola assigns the booking to Mr. Sham. Mr. Sham is the supplier of service, Ola is the ECU, and Mr. Rahul is the recipient. In this scenario, Ola will be liable to collect the GST amount from Mr. Rahul. Ola will Mr. Rahul से collect करेगा and remit the collected GST to the government.
Second service is OYO. The ECO is renting of accommodation by unregistered hotels. इसमें जो OYO है, जैसे अपन कोई अनरजिस्टर्ड होटल है जो ये OYO के थ्रू अपना कस्टमर एक्वायर कर रहा है, तो कस्टमर को लेके आ रहा है, तो उस केस में OYO will be liable to pay tax. अगर इस केस में अगर रजिस्टर्ड हुआ होटल, एक्सेप्शन में कह रहा है कि होटल रजिस्टर्ड हो, उसमें लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 हो, तो वो होटल टैक्स पे करेगा, इसमें ECO पे बर्डन नहीं आता पेमेंट. Similarly, renting of accommodation. अर्बन क्लैब से प्लम्बिंग की सर्विस है, हाउसकीपिंग की सर्विसेज है. अर्बन क्लैब इज द करेंट एग्जांपल ऑफ इट. जो हाउसकीपिंग की सर्विसेज है उसके लिए अगर सप्लायर एंड रजिस्टर्ड है तो ECO को पेमेंट करना होता है, अर्बन क्लैब को पेमेंट करना. गौरव समझाएगा कैसे खड़ा हो. हाँ समझा कैसे हो रहा है ये जो बता रहा था लास्ट लाइन. हाँ क्या अर्बन क्लैब क्या? हाँ ECO कौन होता है इस केस में? हाँ हाँ क्या होता है ECO के केस में? कौन अनरजिस्टर्ड है? अर्बन क्लैब के केस में कौन अनरजिस्टर्ड है? अर्बन क्लैब जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे को कर रहा है और मैं रजिस्टर्ड हूँ. मैंने अर्बन क्लैब से इलेक्ट्रिशियन बुलाया, मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूँ तो अर्बन क्लैब पे करेगा. यूँ सही कह रहा है? तो कह रहा है अगर मैंने अर्बन क्लैब से इलेक्ट्रिशियन बुलाया और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो अर्बन क्लैब मेरे ब्याह पे तो सही हो गया. तू ही बोला अभी, तू बता दे. इलेक्ट्रिशियन अनरजिस्टर्ड है. हाँ कौन सी लाइबिलिटी किस अमाउंट पे? अर्बन क्लैब ने मेरे से लिए फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, उसको पे किए 800, इसको इलेक्ट्रिशियन और 200 उसको खुद के. अब वो आरसी की चीज पे देगा. 200 का क्या होगा? 200 बिल लगेगा. धीरे धीरे क्यों, मतलब किधर सो के रखा था. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज. अगर जब हम जोमेटो वगैरह से होटल से ऑर्डर करते हैं सामान, तो इस केस में फूड अपन ऑर्डर करते हैं, उस केस में अपन जो पेमेंट कर रहे हैं वो GST का, वो ECO को पेमेंट करते हैं. और ECO जो है अल्टीमेटली जोमेटो स्विगी गवर्नमेंट को पेमेंट करना है. इसमें एक्सेप्शन है अगर अपन ऐसे होटल, जैसे मान लो मैंने मैरिट से खाना मंगाया, मैरिट से मैंने पनीर की सब्जी ऑर्डर करी, तो उस केस में मैरिट के केस में ये अल्टीमेट लायबिलिटी जो होगी वो सप्लायर की होगी, मतलब मैरिट की होगी. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन करवा रहा है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में अगर रेस्टोरेंट लोकेटेड है जैसे, और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस जो है उसका अगर अकोमोडेशन मतलब एक रूम का पर डे का 7500 रुपीस से ज्यादा होता है कंसीडरेशन, तो उस केस में जो सप्लायर है वो सप्लायर को भी टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. ECO पे लायबिलिटी नहीं होती, एक्सेप्शन है. मैंने बात की थी पहले कि सेक्शन 2 ECO के दो सेक्शन है, सेक्शन 9 और सेक्शन 5. पहले क्या सेक्शन 52 जिसमें TCS ECO को पे करना पड़ता है, ये ECO को काटना पड़ता है सप्लायर का. जो भी मैंने अभी डिस्कस करी, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हुई, प्लम्बर की सर्विस हुई, हाउसकीपिंग सर्विस हुई, वो सेक्शन 95 में कवर है. उसके अलावा अगर अपन कोई भी गुड्स जैसे अमेज़न के थ्रू भेजते हैं, कोई सप्लायर गुड्स भेजता है, प्रेफर के थ्रू भेजता है, उस केस में सेक्शन 52 एप्लीकेबल होता है. 52 जिसमें सप्लायर अमेज़न से मैं अगर ऑर्डर कर रहा हूं प्रोडक्ट, तो मैं अमेज़न को पेमेंट करूंगा, फिर अमेज़न जो पेमेंट करेगा सप्लायर को, जो एक्चुअल सप्लायर है उसमें TCS काट के उसको पेमेंट करेगा, जिसका उसको TCS क्रेडिट मिल जाता है. TCS का क्रेडिट भी मिलता है अगर सप्लायर को क्रेडिट उसके कैश लेजर में ऐड हो जाता है, और वो कैश लेजर को पेमेंट करते हैं
GST को रिप्लेस कर सकते हैं। These are the differences. पहला e-commerce operator is liable to collect and pay GST as it is the मतलब इसमें पहले 95 में e-commerce के ऊपर लायबिलिटी है क्यों पेमेंट करे GST का टू दी गवर्नमेंट। लेकिन इन सेकंड केस सेक्शन 52 में केवल और केवल उसको TCS डिडक्ट करना है सप्लायर का, उसके अलावा उसको पेमेंट नहीं करना है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। E-commerce operator must mandatorily obtain registration in case of section 95 e-commerce operator को mandatory registration लेना जरूरी है, लेकिन जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सब मैंने कवर किया था कि सारे जो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर थे, रेस्टोरेंट सपोर्ट्समैन का प्लम्बिंग की सर्विसेज में अनरजिस्टर्ड था। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अगर सेक्शन 24 ऑफ रजिस्ट्रेशन में कवर होता है CGST में, compulsory registration is for both e-commerce operator as well as the supplier। अगर कोई supplier ECU के थ्रू सप्लाई करता है जो कि सेक्शन 52 में कवर होता है, उसमें compulsory registration उसको लेना जरूरी होता है। Form 3B needs to be filed in this case। 95 के सेक्शन में ECU को 3B में अपनी लायबिलिटी दिखानी होती है इन टेबल 3.11, जहाँ वो जो भी सप्लाई उसने सप्लायर के बिहाफ पे की है उसमें उसको पेमेंट जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट को करना होता है, उसको उसकी सप्लाई 3B में शो करनी होती है अंडर टेबल 3.1.1। इन केस ऑफ सेक्शन 52 जो अल्टीमेट पेमेंट है वो सप्लायर ही करता है। सप्लायर अपनी GSTR 1 में शो करता है जो भी उसने सप्लाई 352 में अल्टीमेटली उसको फिर वो पेमेंट करता है 3B में, और उसको इनपुट अपना उसको इनपुट टैक्स इनपुट नहीं कैश लेजर में क्रेडिट भी हो जाता है सप्लायर को। यहाँ पे सिर्फ GSTR 8 जो है वो ECU भरता है, ECU भरता है वो रिफ्लेक्ट होता है अपने फॉर्म 2A में, जहाँ से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, सप्लायर कन्वर्ट करता है कैश लेजर में। And RCM is applicable on section 9 subsection 5, but no RCM is applicable on section 52. Now we will cover the reporting requirements of reverse charge from the point of view of both supplier as well as the recipient. From the point of view of the supplier, supplier has to report supplier has to report the transactions that he had made। जो इसकी RCM की सप्लाईज होती है, सप्लायर को रिपोर्ट करनी होती है फॉर्म टेबल 4B में ऑफ फॉर्म GSTR 1, 3B में भी उसको रिपोर्ट करनी होती है 3.1C ऑफ फॉर्म GSTR 3B, एंड GSTR 9 में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन विद टैक्स the tax payable by recipient under RCM is reported under table 5C of form GSTR 9। GSTR 9 में जो भी इसने सप्लाई करी है वो रजिस्टर्ड पर्सन RCM में हाँ संस्कृति GSTR 1 में कौन क्या फाइल करेगा? GSTR 1 के अंदर जो सप्लायर होता है सप्लाई से बेसिक डिटेल्स। ये RCM के केस में क्या फाइल करेगा? RCM के केस में RCM के अंदर आता है ना हमारा GSTR 1 ये तो 1-3B खोल दिया इसने, RCM का क्या लेना देना? अपन तो 3B में जब इनपुट लेते हैं या आउटपुट पे करते हैं तब RCM डालते हैं, 1 में कब से डालने लगते हैं? सुन लिया तेरी पड़ोसी से पूछ, उसको भी नहीं पता, नहीं पता ये बातें कर रहे थे, आता भी नहीं है फिर, या तो भाई किसी उसको आता है तो कैप लगा के आराम से उसको इंटरेस्ट है तब वो आगे बैठा है, जो पीछे बैठते हैं ना वो वैसे ही उनको इंटरेस्ट नहीं। सबसे पहले ऐसा होता होगा ना यहाँ पे कि सबसे पहले आगे पीछे बैठते हैं, पहले आगे बैठे थे लोग है ना, पीछे वाले बैठे होंगे, ऐसा तो मैं यहाँ बैठा था आगे तो वो तेरी इमेज बनाने के अरे पीछे चेयर्स खाली नहीं थी इसलिए इमेज शुरू में कोई आता है और आगे बैठ जाता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं यार जिसमें मतलब माना कि तुम्हारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते होंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आता है, कुछ तो इसमें से हो सकता है कि पेपर में आता होगा, नहीं आता है, और यहाँ तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही दिए जाते होंगे शायद, पता नहीं दिए जाते तो खुद जो ऑडिट कर रहा है वो खुद से ले लेता है, हाँ मेरे यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, ले सकते हैं ना। अब तो बता सोच क्या होता है, कहाँ सप्लायर RCM वाले इनवॉइस अपलोड कौन करेगा, क्यों करेगा? एक एग्जांपल बता, क्या है GSTR 1 क्यों बताया?
इनवॉइसेस डालेगा ताकि सामने वाला उसका आरसीएम से क्या लेना देना? सामने वाले की टूबी में आ जाए वो जीएसटीआर 1 इसलिए फाइल नहीं किया जाता कि सामने वाले की टूबी में आ जाए। मेरे को मेरी सारी आउटपुट सप्लाई की डिटेल जीएसटीआर 1 में देनी है, लेकिन मेरी कुछ अगर मैं कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन हूँ जिसकी कुछ सर्विसेज आरसीएम में है जिसमें मेरे को पे नहीं करना, रिसिपिएंट को पे करना है, उस केस में भी मैं वो बिल्स भी वहाँ पे अपलोड करूंगा और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है विद आरसीएम इज एप्लीकेबल, वहाँ मैं यस कर दूंगा। ये सबको पता भी होगा वैसे, उनको ऑडिट करते टाइम सोच ही नहीं करूँगा। तो टूबी में देखो दिखता है कि आरसीएम एप्लीकेबल इसका एक कॉलम आता है, अगर किसी ने देखा ना वो कहाँ से आता है, 1 में भरते तभी तो आता है, वहाँ यस रहता है। तो अपने को क्या देखना होता है उस बिल पे आरसीएम में रिसिपिएंट ने आउटपुट पे करा कि नहीं करा, करते हो चेक कभी ऑडिट में? टेबल पर बोर्ड पर मन में आता है बोर्ड पर तो वो आती है जो अपन टेक्स्ट तो आरसीएम 100% टूबी में आता है क्या? नहीं, जब बस सप्लायर कौन कौन सा आरसीएम टूबी में आता है? जब बस सप्लायर सिर्फ सप्लायर रजिस्टर्ड वो वाला आता है। आरसीएम 3B में अपन कहाँ आता है? पे में इनपुट लेते टाइम एक ऊपर टेबल नंबर 1 में आता है 4A में 4C में ए बी 4 का ABC जो और एक टेबल नंबर 3 में आता है जब पेमेंट कर रहे हैं अपना और 4 में अपना एक्सीडेंट 3 होती है 5 होती है 5 होती है इनपुट वाली 6 तो पेमेंट ऑफ टैक्स हुई है 5 में 3 में अपन 4 में आईटीसी लेते हैं। 4 में तो एक गुड्स का आता है, एक सर्विस का आता है और एक एनी अदर आता है और एक उससे पहले आरसीएम आता है। तो शुरू के तीनों कॉलम आरसीएम के इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एनी अदर नहीं मेरी तो जहाँ तक सुन रही है वहाँ से बाकी पिछड़ा हुआ इंटरेस्ट नहीं होता। टेबल नंबर 1 की खाली कॉलम होते हैं उसमें 1 2 3 वाले इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस और अदर आएगा। इन तीनों में से कौन से टूबी में दिखेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विस गुड्स आता है, IMPG कैटेगरी में आता है IMPG IMPG आता है और रजिस्टर्ड से अदर वाला आता है। तो अपने को ये देखना होता है कि वो इनपुट तो तभी मिलेगी जब वहाँ पे आ गई, और अदर देन दैट आपको खुद को उस केस में आपको खुद को इनवॉइस बनाना है, जो अपन शायद किसी ऑडिट में नहीं देखते। सेल्फ इनवॉइसिंग अपन किसी ऑडिट में नहीं देखते, क्योंकि आपको खाली इतना सा देखना है पूरे महीने में किसने इसने देखा वो इनपुट कौन सी कागजी कहाँ देखा कौन सी ऑडिट जब तेरे को कागजी में स्पेशली जीएसटी चेक कराया जब तो देखा जब तो जीएसटी भी करते ना अलग से बैठ के शुरुआत में उन्होंने करता था लैपटॉप तो तेरे रहता था लैपटॉप तेरे लिए क्या था ना काम तो ही करता था बेसिकली कई बेसिक सी चीजें हैं। अगर कोई भी जीएसटी अथॉरिटी जब आती है और वो आपके इस सेक्शन में भी पेनल्टी लगा सकती है सेल्फ इनवॉइसिंग वाले केस में, जब इजी सा है जो बिल दिख रहे हैं वहाँ पे इनके अलावा जहाँ पे भी आपने आरसीएम पे किया उनको एक सिखाना है कि आपको एक अलग सीरीज में एक फॉर्मेट बना लो टैली में, और जब भी वो एंट्रियां बुक करो उसका एक इनवॉइस बन जाए, ऐसा सिस्टम कर लो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है वो टैली में भी बन गया तो एक बार सफिशिएंट है। तो प्रिंट देना अपने को कोई मांग नहीं करता, इनवॉइस तो ऑन बिफोर तो आएगी। इसमें तो आईटीसी भी एलिजिबल हो जाता है अगर आपके पास सेल्फ इनवॉइस ना हो। हाँ वही बोल रहा हूँ, लेकिन अपन मैं भी नहीं देखता, कोई नहीं देखता इस नहीं आरएसईपी जो है ना वो लोग बना गवर्नमेंट कंपनीज है ना उनको एक बार आप बता दो ये करना है तो वो कर लेते हैं, वो एक आदमी जिम्मेदारी देते हैं वो करना है तो जो समझ में आएगा तो टीडीएस भी सबसे ज्यादा काटना है उनको ये काटना है तो काटना डाउट है वहाँ काटना है। तो 1 में वहाँ गया तो 3B भी पूरी बता दे 3B में क्या करना है, रिसिपिएंट को क्या करना है, सप्लायर को क्या करना है, कहाँ दिखाएगा वो
कोई जिसको फटाफट बताना वो खड़ा होकर वो बता दे। थक गया नहीं, थका नहीं हो तो कुछ भी बोलो। हर्षली बोल रही बता। तो बैठी कोने में ऐसे पिलर के पीछे क्यों नहीं हुई तू? ये पीछे केविन खाली और इधर और जगह नहीं थी क्या? हाँ कोने में बैठ जाएगा। तू बता दे बैठ जा। सप्लायर को 3B में रिपोर्ट करना होता है अपनी आउटपुट सप्लाईज में 3.1C टेबल नंबर है उसको अपनी आउटपुट सप्लाई बतानी पड़ती है जो कि उसने आरसीएम में एग्रीगेट वैल्यू जो आउटपुट सप्लाई की है वो 5C में जीएसटी लाइन एनुअल रिटर्न रद्द बतानी होती है सप्लायर को। Supplier reporting in GSTN 9C. It is a reconciliation statement is prepared for the annual return GSTN. In table 7D of GSTN 9C, supplier has to report all values of supply made by the registered person where the recipient is liable to pay tax in the RCM must be declared under table 7D of GSTN 9C. जो इसकी रिपोर्टिंग होगी ट्रांजैक्शन की जो क्रेडिट नोट वगैरह है उसको डिडक्ट करने के बाद डेबिट नोट के एडजस्टमेंट करने के बाद अपन को रिपोर्ट करनी होती है नेट आउटपुट सप्लाईज अंडर आरसीएम। तूने वो शीट बुक कर रखी है इसमें तेरे बुक करके वो तो साथ में आता है। और वो तो रहेगा 21 में अभी आज को प्राइस देना तो करता रहे। अगर रिसिपिएंट ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कराए गुड्स जो कि टैक्सेबल है अंडर 9(3) और 9(4) तो उसको सेल्फ इनवॉइस बनाने पड़ते हैं। इनके सप्लायर यहाँ पे इनवॉइस नहीं बनाता है, अपन को जो रिसिपिएंट है वही टैक्स पेमेंट करता है तो उसको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना होता है। And in case of GSTR 1, recipient reporting in table 3. Recipient table 3.1D report the value of notified goods services letter with the reverse charge in table 3.9D of form GSTR 3 जो मैंने अभी बताया। This capture inward supplier liable to reverse charge और इसका जो inward supplier से पेमेंट किया है 3B में उसका वो ITC ले सकता है क्योंकि टेबल 4A2 में उसको मेंशन करना होता है जिस अमाउंट है वो ITC लेगा। इसमें जो ब्लॉक क्रेडिट है उसका अपन ITC नहीं ले सकते और जो सेक्शन 74 में डिमांड पेमेंट हुई है उसका भी आईटीसी आरसीएम के लिए जो डिमांड पे होती है तो उसमें भी अपन आईटीसी नहीं ले सकते। डीआरसी 03 जो फॉर्म पेमेंट है इसका सेक्शन डिमांड के लिए वॉलंटरी विधि को 3B से अपन पेमेंट करते हैं। दूसरे तरीके के जो पेमेंट जीएसटी में होते हैं वो डिमांड वगैरह पेमेंट होते हैं, वॉलंटरी पेमेंट होते हैं, वो फॉर्म डीआरसी 03 से होते हैं। इसमें सेक्शन 2 सेक्शन है, सेक्शन 73 जिसमें बोनाफाइड इंटेंशन मतलब अपना इंटेंशन तो अच्छा था लेकिन अपने को एक मिसफुल गलती करके उसके कारण टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाए तो सेक्शन 73 में कवर होता है। अगर इसका अपन डीआरसी 03 से पेमेंट करते हैं तो उस पे अपन आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन अगर सेक्शन 74 जो फ्रॉड वाला है अगर अपन फ्रॉड एंड मिसयूज कंडक्ट में पाए गए तो उस पे अपन आईटीसी अगर आरसीएम का पेमेंट करते हैं तो उस पे अपन आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन आजकल आरसीएम का भी एक रजिस्टर बनने लग गया। अगर किसी ने पोर्टल पे चेक कराओ जैसे वो अभी नए रजिस्टर्स कुछ हैं। पहले होता था एक कैश लेजर, एक होता था क्रेडिट लेजर, आजकल एक हो गया रिक्लेम लेजर और वैसे ही आरसीएम लेजर भी होता है। जितना आप आउटपुट पे कर रहे हो उसमें जाता है फिर आप उसी से इनपुट ले सकते हैं। तो जो तू ये बोल रहा है डीआरसी 3 में भी अगर 73 में फाइल कर रहे हो तो ले सकते हैं तो लेकिन वहाँ दिक्कत आएगी प्रैक्टिकली जब लेने जाएंगे। हाँ उस लेजर में डीआरसी 3 से अगर आप फाइल करोगे तो वो लेजर में नहीं आती वो तो नहीं सकता है। तो प्रेफरेबली पेमेंट जो है वो आपको 3B के थ्रू ही कर देना चाहिए आरसीएम पर। डीआरसी 3 को इग्नोर कर तो जब डिपार्टमेंट सामने से करवाए तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अपन तो उस केस में भी जनरली डिपार्टमेंट को बोलते हैं अगले 3B में कर देंगे तो मान जाते हैं।
These are the reporting requirements in the GSTN 9 by the recipient. In table 4G, he has to report all the inward supplies on which tax is paid by him on reverse charge basis. And in table 6C and table 6C, he has to report all the ITC he has availed on the on which he has made the payment under RCM. In table 6, in table 6C and 6D, import services are not covered. It is covered under table 6F. अगर अपन ने RCM import services में पेमेंट किया है तो वो 6F में कवर होता है. In GSTR 9C, supplies where tax was paid on a reverse charge basis by the recipient shall be declared under the head. GST 9C में जो भी सप्लायर ने पेमेंट किया है इनवर्ट सप्लायर्स का उसको टेबल टाइटल आरसी इन टेबल 9 के अंदर मेंशन करना होता है. एनी आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आरसीएम शैल बी डिक्लेयर्ड इन टेबल 12 मेंशन. टेबल 12 में भी इसका रिपोर्टिंग होती है. आईटीसी जो भी अपन ने अवेल करा उसकी रिपोर्टिंग टेबल 12 में होती है 9C के रिकंसिलिएशन. दैट्स इट. कुछ बोलो ना. बेसिकली मेरे हिसाब से जिन लोगों ने कोशिश अच्छी करी, अच्छी तरह से चीजों को समझा है और 20% बच्चों ने ध्यान से सुना भी. सुना तो जिन्होंने सुना नहीं, अगली बार कोई अगर अच्छा टॉपिक हो, चलो आज सुनते अच्छे स्पीकर हों, अच्छे कम से कम कंसंट्रेट करिए. तो अगर जबरदस्ती बैठना तो बड़ी रहती. तुम ये सोच के साथ भी अगर बैठ रहे हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे टाइम तो तुम्हारा ही है. किल क्यों करते हैं? बातें करने का शौक सबको. फोन पे कर लिया करो, रास्ते में जाते कहीं फोन से कर लिया करो. वैसे भी तुम्हारे पास तो 2.5-3 साल है पढ़ने के लिए. ये एक तरह से स्टडी है. जब तक ये तो 100% टॉपिक रिलेटेड टू तुम्हारे सिलेबस का. कई बार होता है कि वो नहीं होता, तुमको ऐसा लगता है, लेकिन इनडायरेक्टली फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा. हो सकती है क्लास इंटरेक्टिव ना हो, स्पीकर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो, लेकिन तुम तो इंटरेक्टिव बना सकते हो. तो जिनको लगता है कि मैं शायद इस क्लास को इंटरेक्टिव कर सकता हूँ या मेरे इस चीज में इन्वॉल्व होने से, मैं एज ए स्पीकर जरूरी नहीं कि हर बार हूँ, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ तो मैं खुद से कुछ पूछ लूँ, खुद से कुछ प्रयास कर लूँ, खुद से कुछ करेक्शंस कर दूँ, ताकि चीजें एक इन्वॉल्वमेंट बना रहे. वो कोशिश करते रहा करो और आगे से कोशिश करो कि भाई मैं आगे बैठूं, पीछे तो जो लास्ट में रहा है